Good morning, viewers. Hello and welcome to the morning news show. I'm Koina Sharma. Well, the headlines are evolving, the conversations are changing, and so are we. Welcome to the brand new CNN News 18 with the same trust you believe in, but the news that matters. We read with a sharper edge and a bolder voice. Let's begin. Well, we are now starting the bulletin with some updates on the Nagpur riots. The probe into the Nagpur riots is gathering pace, with sources telling CNN News 18 that the NIA could assist the ATS. Investigators suspect a Kashmir-like modus operandi, with reports of stones brought in trolleys and mobs using bylines for cover. Petrol bombs and sharp weapons were also used. Maharashtra CM Devendra Fadnavis has now vowed strict action against the culprits. The ATS is probing whether the violence was pre-planned, with Fahim Khan, president of the Minority Democratic Party, emerging as a key figure. Officials are also examining social media posts inciting the entire violent situation. Meanwhile, DCP Archit Chandak, injured in the clashes, confirmed that the use of petrol bombs and large stones, saying that the violence appeared far from spontaneous. With the NIA's past experience in handling such cases in stone pelting in Kashmir as well, its involvement could provide key developments into the entire case. I hope you're all right. आपको कहाँ चोट लगी? What happened? Can you tell us? उस दिन जब ये वायलेंस हुआ था, तब स्टार्टिंग में जब आई थिंक अराउंड 8:15 स्टोन पेल्टिंग स्टार्टेड, 8:15 to 8:30 के आसपास स्टोन पेल्टिंग शुरू हुई थी. उसके पहले नारे निर्देशन हो रहे थे एंड थोड़ा सा मॉब बढ़ गया था एंड दे स्टार्टेड टेकिंग लॉ इन देयर ओन हैंड्स. शटर वगैरह तोड़ने लग गए थे, तो फिर लाठीचार्ज हुआ एंड वो पीछे गए एंड पीछे से स्टोन पेल्टिंग शुरू हुई. तो उस स्टार्टिंग की ही स्टोन पेल्टिंग में वी हैड आवर राइड गियर एंड वी हैड आवर हेलमेट्स एंड शील्ड, बट एक बहुत बड़ा सीमेंट का बोल्डर आके मेरे नी पे लगा था. सो इट वाज अ बिग हिट. आई रियलाइज्ड इट, बट एट दैट टाइम डिडंट रियलाइज द ग्रेविटी ऑफ इट बिकॉज द वायलेंस हैड जस्ट स्टार्टेड एंड आवर रिस्पॉन्स इमीडिएटली स्टार्टेड इन द नेक्स्ट 2 hours. हमारा जो कंटेनमेंट था उस चीज का, हमारा जो रिस्पॉन्स शो ऑफ फोर्स करना था, एंड उन्होंने काफी क्रेन वगैरह भी वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा था चितनीस पार्क के जो एरिया में, सो क्रेन भी जलाई एंड वो काफी ज्यादा जल गई थी. तो उसको फायर ब्रिगेड को भी लेकर आना, वो बुझाना, ताकि अदरवाइज इट कुड हैव बीन अ बिग एक्सप्लोजन. एंड उसके बाद हमारा वो कंटेनमेंट, टीयर गैस शेल्स हमने काफी फायर किए. काफी हमारी टीम ने सीपी सर के मार्गदर्शन में, अलग अलग डीसीपीज की टीम थी, तो हमने उनको ताबे में भी लिया, कस्टडी में भी लिया तुरंत. एंड देन छोटी छोटी गलियों में भागे वो लोग, कुछ कुछ घर में भागे, कुछ कुछ ऊपर घर से ऊपर से पत्थर फेंक रहे थे. तो 2-3 घंटे का ये वायलेंस रहा है वहाँ पे एंड अराउंड 10:30-11 तक के इट वाज कंटेन्ड लार्जली. देन 11:15 आई वाज एब्सोल्युटली नॉट एबल टू वॉक. देन आई रियलाइज कि ये कुछ ज्यादा हो गया है, स्वेलिंग, इंटरनल ब्लीडिंग बहुत हो गई थी. तो फिर देन आई वेंट टू द हॉस्पिटल इन द नाइट. तो मालूम पड़ा कि इट इज अ लिगामेंट टियर. But Archit, if I may ask you, at what point did you feel something is wrong? And did you feel कि ये spontaneous था or that they had come prepared? And what was this mob trying to say? Because the FIR says they were accusing the cops of colluding with the Hindu protesters. नो, ये जो सुबह की घटना हुई थी उसमें एफआईआर तो दोपहर को ही रजिस्टर हो चुका था. प्रॉम्प्टली द एफआईआर वाज रजिस्टर्ड बिकॉज वो सुबह की घटना के ऊपर दे हैड कम विद द कंप्लेंट. बट सोशल मीडिया पे काफी वो वायरल किया गया था कि ये वर्सेस जलाए गए हैं और ऐसा हुआ है. तो वो जो सोशल मीडिया पे वायरल हुआ उसके कारण थोड़ा सा मॉब जमने लगा. And they were told, and CP sir had also intervened and told them कि ये DCP traffic. Right. But when the situation was a bit worsened, then CP sir had called other DCPs also to the spot. Right. And at 7:30 we realized कि थोड़ा सा मैटर आगे और बढ़ रहा है, because they were not relenting. नारे निर्देशन बहुत बढ़ रहे थे. And the moment when they started taking law in their own hands, then we had to have a show of force. Otherwise there was no end to that. तो वो उसके अराउंड 8:15 पे वो लाठीचार्ज किया गया था. कर रहे थे, ठीक है, प्रदर्शन करना किसी के खिलाफ आपका संवैधानिक अधिकार है, लेकिन मुसलमानों की कलमे की चादर को जलाना
ये कहाँ की बात हुई? वहाँ पर जो है कलमे की चादर को जलाई गई, जिसमें हमारे कुछ बंदों ने जाके विरोध किया और उसके बाद में प्रकरण सामने आया और पुलिस वालों ने लाठीचार्ज सिर्फ एक पक्ष के ऊपर किया, जबकि वो शांतिपूर्वक ढंग से वहाँ बैठकर सिर्फ ये डिमांड रख रहे थे कि जिन्होंने कलमे की चादर जलाई उनको अरेस्ट करो और उनको लेकर आओ। लेकिन मसला ये हुआ, आज यहाँ पे हमारे को जो है डीसीपी और एसीपी साहब ने जो है आश्वासन दिया कि, और वो हमेशा आश्वासन वाला लॉलीपॉप मिलता है हमारे को, जिसको हम बोलते हैं। अभी हमने वही बात की है कि आप कल बुलाओगे, उसको एक नोटिस देंगे और 2 घंटे के बाद में उसको सलाम दुआ कर देंगे, फिर उसकी डेयरिंग बढ़ जाएंगी और फिर यही काम करेगा। अभी काफ़ी हद तक जो है लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल में है, लेकिन ये जो मिसक्रेंट्स है जो ये सब उपद्रव कर रहे हैं, अभी पता चला है कि कुछ महिला पुलिसकर्मियों पर भी उन्होंने पथराव किया है, उनको भी चोट लगी है। मुझे लगता है ये महाराष्ट्र में कभी देखा नहीं, और ये कुछ जिस तरीके से माहौल बनाने का काम कुछ लोग यहाँ पर कर रहे हैं, उनको कड़ा से कड़ा जो है शासन करने का काम कल भी माननीय मुख्यमंत्री जी हो, उप मुख्यमंत्री जी हो, कहा है उन्होंने कि सभी लोग शांति से रहे, शांतिपूर्ण व्यवहार जो है सभी को मनाए रखना यहाँ पर जरूरी है। और अगर ऐसे ही चलता रहा तो एक भी व्यक्ति जो है जिसके अंदर इन्वॉल्व है वो सबके ऊपर जो है कार्रवाई सरकार के माध्यम से होगी। घर आइडेंटिफाई किया है कि जिसमें घर से हमका हमारे ऊपर पथराव हुआ, पुलिस के ऊपर पानी डाला, वेपन दिखाए, वो हमने आइडेंटिफाई किए थे। अब उनका कोम्बिंग ऑपरेशन चालू है, अरेस्ट हो जाएंगे। जो आरोपी है जो इसमें इंक्वायरी के लिए हमने ताबे में लिए, अभी तक यहाँ से 5 लोग लिए हमने ताबे में, तो आगे की इंक्वायरी उनके चालू है। ज्यांनी पोलिसांवर हल्ला केलेला आहे त्यांना कबरीतने खोदून काढू, सोडणार नाही। बाकी सगळ्या गोष्टी क्षम्य आहेत, पण पोलिसांवर हल्ला हा क्षम्य नाही। त्यामुळे त्यांच्यावर जी स्ट्रिक्टेस्ट कारवाई आहे ती कारवाई करून